side, ladies and gentlemen, the big war in Delhi because elections are around the corner. The road to India is paved through Delhi Darbar. That's what everybody says. And now this Darbar turns into a battlefield with elections fast approaching. Hit by Liquorgate, jailed in graft cases and split by defections, Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party are recalibrating its fight for survival in Delhi. A major reshuffle is seen in Aam Aadmi Party's Delhi lineup. 13 sitting MLAs have been dropped and seats of 2 MLAs have been changed. Candidates whose seats have been changed include former Deputy Chief Minister Manish Sisodia and Kejriwal's right-hand man. Aam Aadmi Party's number 2 has been dropped from his traditional Patparganj seat from Delhi, where he contested elections thrice. This time he will contest from Jangpura. And a new entrant to the party, Awadh Oja, has now been fielded from his erstwhile seat in Patparganj. The reshuffle of seats by the Aam Aadmi Party has raked a massive political storm. Manish Sisodia claims he's confident of AAP's victory both from Patparganj and Jangpura, but the decision has given the BJP fresh ammunition to corner the Aam Aadmi Party. The BJP says this is all the decision for looking for a safe seat for Sisodia. And this shows the number 2's fear for loss of seats. Well, we'll go straight across to the debate. Joining Shehzad Poonawalla on the debate is Reena Gupta, Secretary, Delhi State Aam Aadmi Party and National Spokesperson of AAP. Thank you, Reena Gupta, for joining the debate. And my first question, is this lack of confidence? Is there anti-incumbency, which is why such a major reshuffle in the ticket distribution? And the biggest one, of course, questions being raised about Manish Sisodia changing his own seat. Is this what the BJP calls an attempt to look for a safe seat? नविका जी, हर पार्टी अपना सर्वे करवाती है और चुनाव की स्थिति देखती है, उसके बाद डिसाइड करती है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में 7 से 6 जो एमपी के जो इनके सांसद थे उनके टिकट बदले। तो इसका क्या मतलब था? क्या भारतीय जनता पार्टी को हार का डर था? 2014 में मोदी जी ने वडोदरा से और बनारस से चुनाव लड़ा था, जब अरविंद केजरीवाल जी ने निर्णय लिया था कि वो बनारस से उनको चुनौती देंगे। तो क्या मोदी जी डर रहे थे? ये सब हर पार्टी की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। आम आदमी पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है, अपना सर्वे किया है, उसके हिसाब से ये निर्णय लिया गया है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। हर 70 सीट पे हम लोग यही बोल रहे हैं कि खुद अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे लिए वही उम्मीदवार हैं। जहां तक मनीष सिसोदिया जी की बात है, वो पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं, वो जहां से चाहे वहां से लड़ सकते हैं और वो वहां से जीतेंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, पिछले 25 साल से उनका एक सपना है कि दिल्ली में उनका मुख्यमंत्री हो। 25 साल में तो दिल्ली की जनता ने वो सपना पूरा नहीं होने दिया। इस बार भी उनका वो सपना पूरा नहीं होगा। All right, Shehzad Poonawalla, आपने चेंज किया. When you changed your candidates for the Lok Sabha elections, you didn't raise a question. Why are you raising questions on Manish Sisodia ji? नहीं, लोकसभा में भी इन्होंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई थी जिसकी कस्में खाकर कहा था कि कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, बच्चों की सौगंध खाते हैं। उस कांग्रेस के साथ लिपट गए और उसके बाद भी 7 में से कितनी सीट मिली? और आपका तो नारा था जेल का बदला वोट से देंगे। और चलिए, मुझे तो खुशी है कि रीना गुप्ता जी ने दिल्ली बीजेपी का एक नारा अपना लिया कि अब नहीं सहेंगे, खुद ही बदल के रहेंगे। मतलब मनीष सिसोदिया को नहीं सहेंगे, खुद ही बदल दिया। अब बताइए, सर्वे की बात कर रहे हैं, आप बताते तो थोड़ा रिपोर्ट कार्ड देते ना। 24 हॉस्पिटल नए बनाने वाले थे, कितने बना लिए? यमुना जी को साफ करने वाले थे, कितनी साफ हुई? 25 तक डुबकी लगाने वाले थे। प्रदूषण युक्त कर दिया आपने, प्रदूषण मुक्त करने के बदले दिल्ली को पराली पंजाब की कंट्रोल करवा ली क्या? या आप जवाब दे दीजिए, 11,000 डीटीसी बसेस में से कितनी बसेस आ गया? स्कूल स्थिति का ऐसा स्थिति है कि आतिशी बोलती है उनके स्पीच में कि सत्य नडेला इज द CEO ऑफ गूगल।
मतलब ये एजुकेशन मिनिस्टर रही हैं, एजुकेशन का ये हाल है कि चीफ मिनिस्टर को सत्य नडेला कहां के सीईओ है वो नहीं पता। अच्छा, नया फाइंड भी लेकर आए ट्यूशन मास्टर अवध ओझा जी। अवध ओझा जी का आज का बयान है कि यूपी और बिहार के लोग बड़े आलसी है, काम नहीं करते, समय की कमी है इसलिए सुनाता नहीं हूं। और दूसरा उन्होंने बोला कि ओसामा बिन लादेन ने तो बड़ा काम कर दिया अमेरिका को अटैक करके, जहां 3000 लोग मरे। तो ऐसे तो लोग हैं। मैं सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहता हूं रीना गुप्ता जी, आप तो बड़ी कॉन्फिडेंट है ना, तो 80% सीट चेंज, 9 लोगों को बाहर से बीजेपी और बाकी जगह से टिकट दे दिया अपनी पार्टी में, तो ये तो साफ साफ हो चुका है कि चुनाव की तिथि अनाउंस होने से पहले ही हार स्वीकार ली है। और अन्यथा मुझे बता दे कि काम जो किया है 24 हॉस्पिटल So let's do a rapid fire and let me ask you Reena Gupta. Reena Gupta, you said you've done an internal survey. Very good. Did the internal survey show you that there was high anti-incumbency and that Patparganj was not safe for Sisodia ji? नविका जी, पटपटगंज इतनी सेफ सीट है, इसीलिए वहां से हमने अवध ओझा जी को उतारा है। मनीष जी इतने बड़े नेता हैं, वो दिल्ली में कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं और जंगपुरा से उन्होंने निर्णय लिया। Sounds logical, Shehzad. What is your problem? It sounds logical. He is a बड़ा नेता. He can contest from anywhere. मुझे कंप्लीट करने दीजिए 10 सेकेंड। Okay. 10 सेकेंड नविका जी, लेट मी कंप्लीट प्लीज। Okay. देखिए बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में वोट काटने का षड्यंत्र क्यों रच रही है। दिल्ली में उन्होंने शाहदरा विधानसभा में 11,000 लोगों के वोट कटवाने की कोशिश की है। कल हम एक और विधानसभा का खुलासा करेंगे जहां पे बड़ी मात्रा में वोट कटवाए जा रहे हैं। दिल्ली के पूर्वांचल के भाई बहनों को बोला जा रहा है वोट कटवाए। The charge is electoral rolls and removing names. Please respond. नाविका जी, मैं टाइम्स नाउ से एक स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि थोड़ी देर इस डिबेट को बढ़ा दीजिए। इन्होंने कहा 11,000 नाम कटवाए। 11,000 नाम कटवाने के लिए 11,000 फॉर्म 7 जमा करवाने पड़ते हैं। वहां की डीओ का ऑफिशियल बयान है 494 फॉर्म्स जमा हुए फॉर्म 7। अगर इनके पास 494 फॉर्म से ज्यादा फॉर्म 7 है, अभी आप 5 मिनट बढ़ा दीजिए, 11,000 फॉर्म 7 दिखा दीजिए शाहजहां कॉन्स्टिट्यूंसी के। अन्यथा आप जान लीजिए कि ये वो लोग हैं, बच्चों की सौगंध खाते थे कि कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, बच्चों की सौगंध खाते थे, 2 BHK में रहेंगे, शीश महल में चले गए और फिर किस प्रकार से टोटो टॉयलेट पर बैठे हैं। और आखिरी बात मैडम, आखिरी बात, अरे भाई क्यों आप बीच में बोल रही है रीना जी? टोटो टॉयलेट से इतना परेशान क्यों हो जाती है आप? ये टोटो टॉयलेट का नाम लेते ही आप परेशान हो जाती हैं। ये टोटो टॉयलेट पे आप लोगों को बैठने का अवसर नहीं मिला, केजरीवाल जी बैठे, ठीक है, अब सोच लीजिए, सुन लीजिए। वो तो देखिए टोटो टॉयलेट से क्या इतनी दुश्मनी है भाई? टोटो टॉयलेट से नहीं, टाटा करने वाले लोग। रीना जी, ये तरीका नहीं होता डिबेट का, मैंने तो आपको समय भी दिया। देखिए लगातार डिस्टर्बेंस में आई कांट स्पीक ना, हाउ कैन आई स्पीक? नाविका जी, एक ही सवाल है। What's your question? I'm completely out of time. नाविका जी, एक ही सवाल है मेरा कि मनीष सिसोदिया इतने बड़े नेता है तो मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री नहीं बनाया? Well, that is the choice of the party. Well, the question really is it the biggest war in recent times? Two big faces in contest here in New Delhi. The question is, who's playing to win? Who is fielding candidates and why? Why are they changing candidates? All of those questions out there. Electoral names being removed from electoral rolls, one side, the other side is anti-incumbency. What's going to happen? Well, it's getting interesting. This winter is going to be a very warm, hot winter in Delhi. Elections are around the corner. But for tonight, thank you very much, Shehzad Poonawalla, and thank you, Reena, for joining us right here on the News Hour tonight. And thank you, viewers, for being with me. Good night, be safe, and I'll see you tomorrow on the News Hour at night.